Hello class 4th. Welcome you all again in my science class. Today we will study the second part of lesson 7, that is air. In the first part of lesson 7 we were studied about the definition of matter, that anything which occupies space and has mass is known as the matter. We were also come to know that day that matter exists in three states, that is solids, liquids and gases. The detailed feature of solids, liquid and gases were also taught on that day. The properties of air were also discussed. So in the second part of the video, we will study more about the air. So let's start with the point, what does air contain? It means हवा में क्या क्या चीजें होती हैं. Air is a mixture of gases. हवा में कई तरीके की gases का mixture होता है. Apart from gases, air contains water vapor, smoke, dust particles and many kind of germs too. So the detailed about these points we are going to study in the second part of this video. Already I have told you that air is mixture of gases. So let's start with the gases, that which gases are present in the air, means which gases air contain. Air contains many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. Oxygen is essential for living as all living things breathe in oxygen. ऐसे तो हवा में कई गैसेस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन को इन करते हैं, मीन्स लेते हैं. इट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग टू, और किसी भी चीज को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन गैस चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दिस सेशन इन एनी अदर चैप्टर. द वाटर वेपर इन द एयर काजेज रेनफॉल, और हवा में जो वाटर के वेपर होते हैं उसी की वजह से रेन होती है, मीन्स बरसात होती है. So here is an activity. Activity 1 was explained in first part of the video. Today we are studying activity 2, which is given in your book also. So the aim of this activity is to show the presence of water vapor in air. हम कैसे इस बात को प्रूव करें कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें वाटर वेपर होता है. Children, it is very simple experiment. So the procedure for these activities are, first is keep a glass of cold water on a table. एक टेबल पे एक ग्लास में ठंडा पानी लीजिए. Leave it there undisturbed for some time. आप इसे बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय छोड़िए. It may be only 2 to 3 minutes. But remember that water must be cool. पानी का ठंडा होना जरूरी है. The second is observe the surface of glass. अब हम थोड़ी देर के बाद मीन्स 2 to 3 मिनट्स के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिस ग्लास में वाटर रखा है उस ग्लास के आउटर सरफेस पे क्या स्पेशल दिखाई दे रहा है. सो द ऑब्जर्वेशन इज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विल फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. इस ग्लास के आउटर सरफेस पे छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी. The water vapor present in the air comes in contact with the cool surface of the glass and condenses. Children, can you imagine that from where this water droplets came? This water droplets came from the water vapor which was present in the air. Because when the air touches the outer surface of the glass, it becomes cool. So when it becomes cool, the water vapor which were present in the air gets converted into the water droplets. क्योंकि वाटर वेपर जो होता है जब उसे कोई ठंडी चीज मिलती है या वो कूल होता है तो कूल होने की वजह से वो वाटर की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस ग्लास के आउटर सरफेस पे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हुई है वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे एयर के अंदर जो वाटर वेपर था वो ही कूल होने की वजह से वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया. सो इट शोज दैट द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर.
Now the next point which we have to study about the smoke, dust and germs. Already I have told you that the air contains different type of gases, water vapor, smoke, dust and germs. So in this point we are going to study about smoke, dust and germs. Vehicles and factories give out huge amount of smokes into the air. You all are well knowing कि फैक्ट्रीज और व्हीकल्स जो होती हैं वो बहुत सारे स्मोक को निकालती हैं, जिससे ये सारी स्मोक जाकर के हवा में मिल जाती है। फायर्स आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, और जब हम कोई भी चीज जलाते हैं, आग कहीं लगती है, तो आग से भी स्मोक निकलता है। देयर आर मेनी डस्ट पार्टिकल्स टू इन द एयर, हवा में बहुत सारे धूल के भी पार्टिकल्स होते हैं। दे गेट कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय winds. Many tiny organisms called germs are also present in the air. हवा में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसे जर्म्स कहते हैं वह भी प्रेजेंट होते हैं। स्मोक, डस्ट, germs make the air dirty and polluted. Uses of air. Air is useful to us in the following ways. The first use of air is we need air for breathing. हम सारे लिविंग थिंग्स को एयर की नीड होती है ब्रीथ करने के लिए। सो पहली इंपॉर्टेंस एयर की यही है कि इफ देयर विल बी नो एयर, सो हाउ वी ऑल लिविंग थिंग्स विल ब्रीथ। द सेकंड इज एयर इज यूज्ड फॉर फिलिंग इन टायर्स, बलून्स एंड बॉल्स। अगर हवा नहीं होती तो हम अपने टायर कैसे फिल करते, बलून कैसे फुलाते और बॉल्स को कैसे इन्फ्लेटेड करते। द नेक्स्ट इज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। हवा की वजह से चीजें जलती हैं। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर। हवा में ही बर्ड्स भी उड़ती हैं और एरोप्लेन्स भी उड़ती हैं। नाउ इमेजिन इफ देयर विल बी नो एयर, सो हाउ द बर्ड्स विल सर्वाइव एंड हाउ द एरोप्लेन्स विल मूव। सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, the air has a lot of uses for all of us. Now the next point is breathing. It is directly related with all living things present on the earth. Breathing in oxygen necessary for all living things. सभी living things के लिए सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का लेना बहुत जरूरी है। Different organisms have different organs for breathing. Animals like humans, cats, dogs, cows, crocodiles, whales and dolphins breathe through lungs. ये सारे एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, हम सारे लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं। Animals that live in water like fishes and frogs breathe through gills. और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं जैसे फिश और फ्रॉग, इनको ब्रीथ करने के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है। Insects like cockroaches, grasshoppers, caterpillars, mosquitoes, etc. have air holes called spiracles in their bodies which help them to breathe. Children, do you remember in class 3rd in the first chapter you were studied about the characteristics of living and non-living things कि इंसेक्ट की बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे स्पाइरिकल्स कहते हैं, और इन स्पाइरिकल्स के हेल्प से ये इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, और लीव्स में सांस लेने के लिए छोटे छोटे होल होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमंस। वी टेक इन एयर फ्रॉम आवर नोज। हम ह्यूमंस सांस लेने के लिए अपने नोज का यूज करते हैं। मीन्स सबसे पहले नोज से एयर अंदर जाती है। द टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। सो इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर। यू हैव आल्सो स्टडीड इट। जब हम सांस अंदर लेते हैं इसे इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। सो आफ्टर इनहेलेशन व्हेन द एयर गोज इनटू द लंग्स, इनहेलेशन के बाद जब हवा हमारे लंग्स में जाती है वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। मीन्स लंग्स में ऑक्सीजन चला आता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस उस एयर में चली आती है। देन द एयर इज गिवन आउट थ्रू द नोज, और उसके बाद अब वही एयर नोज से बाहर निकल जाती है। द गिवन आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। Inhalation and exhalation together comprise the process of breathing.
Proper breathing is necessary for a healthy life. Children, listen it carefully. It is very important topic. It is telling कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रॉपर ब्रीथ करना बहुत जरूरी है. इफ आवर ब्रीथिंग टेक्निक इज नॉट राइट, अगर हम ठीक तरीके से इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं करते हैं, आवर बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो हमारे बॉडी के अंदर सही से ऑक्सीजन नहीं जा पाता और न ही ठीक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाता है. देयरफॉर वी मस्ट प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, इसीलिए हमें डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए. डीप ब्रीथिंग की प्रोसेस का मतलब होता है कि जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही डीप वे में करें, मीन्स गहराई से करें. So children, it was all about today. I hope you could understand. Thank you.